Yes, class. So we are going to start our lecture 2 of spoken English today. Okay. Okay, so I just want to tell the people who are new in this class and who were new in the group of WhatsApp. So they just need to follow all the guidelines shared by the DSC team there and on the WhatsApp group. And after that, you can just introduce yourself on WhatsApp group. After some time, I will be opening up the privacy of the group, and there you will be introducing yourself, okay, in a voice note in English, okay, according to the things I have told in the lecture 1. Okay, right now I'm going to start lecture 2. We were discussing something related with the parts of speech. We have just started that, and we have done with the noun things. Okay, right now we are moving forward. So we are going to talk about the noun phrases. Noun phrases can Noun phrases are the words that are made up with the noun, and there are some other words too. Okay, they can be long, they can be short. Okay, so like you are just watching here, a little girl. This can be a girl. ठीक है, इसको एक गर्ल भी कहा जा सकता था. A girl. There is a girl sitting next to me. Okay, मैं ये भी कह सकती थी there is a girl sitting next to me. But if I'm saying there is a little girl sitting next to me, so it little, this little is defining this girl more. And I am telling about the girl ke she is not a grown up girl, she is a little girl. ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, there is a little girl sitting next to me. अब मैं उसे मजीद भी डिफाइन कर सकती हूँ. मैं ऐसे कह सकती हूँ there is a little girl wearing pink frock sitting next to me. मेरे बराबर में कौन बैठी है? एक छोटी सी बच्ची पिंक फ्रॉक पहनी है. अब मैंने क्या किया, इस गर्ल को मजीद डिफाइन कर दिया. अब एक सेंटेंस अगर मैंने ये कहा there is a girl sitting next to me, ये सेंटेंस है एक, और दूसरा सेंटेंस है there is a little girl wearing pink frock sitting next to me. इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस है जो ज़्यादा आपको फ्लुएंट लग रहा है, जिसमें हमने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो आपकी इंग्लिश को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है? सो दैट इज़ द अदर सेंटेंस in which we have used the phrases of noun. Okay, so noun phrases, what they do, they just give you more words to speak, and that would be great for your speaking. That's why we use much of the noun phrases. ठीक है, तो noun phrases आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं. हम सिर्फ words को define करना शुरू कर देते हैं, noun को define करना शुरू कर देते हैं noun phrases के लिए. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ an interesting movie, मैं कह रही हूँ I have watched an interesting movie. ठीक है, अब इस इंटरेस्टिंग मूवी को मैं मजीद डिफाइन कर सकती हूँ. मैं कहूँगी आई हैव वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग एंड स्केरी मूवी. ओके, सो what I am going to do, I am just explaining this movie thing more, जिसमें मैंने ऐड कर दिया इंटरेस्टिंग एंड स्केरी वर्ड. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेरी उस मूवी को मजीद डिफाइन कर रहा है. अब अगर मैं कहती हूँ, ये जो नेक्स्ट आपको फ्रेज नजर आ रहा है, इसमें हम कहते हैं अ लाइफ. दिस इज अ लाइफ, जस्ट सेंटेंस. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ दिस इज अ पीसफुल काम एंड क्वाइट लाइफ, अब आप इस लाइफ को मजीद डिफाइन करें इन वर्ड्स के साथ, एंड यू आर गेनिंग मोर वर्ड्स टू स्पीक. ओके, देन यू कैन से आई हैव अ एंग्री एंड मिस्चिवस चाइल्ड इन माई क्लास. मेरी क्लास में कौन है? एक एंग्री और मिस्चिवस चाइल्ड है. तो आई एम एक्सप्लेनिंग द चाइल्ड more with these words, angry and mischievous. अच्छा, ये जो words हैं सारे, जो किसी भी noun के साथ आप यूज़ करेंगे, सारे adjectives हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे. Then you can say a scary and haunted house. I live in a scary and haunted house. Okay, so that you can just say that, or you can just say that there is a scary and haunted house near my home. Okay, yeah, near my school. Okay, after that you can say a story as old as time. तो कौन सी स्टोरी है? पुराने वक्तों की, जो हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, पुराने वक्तों की बात है, तो ये पुराने वक्तों की स्टोरी है, as old as time. ठीक है, then you can say रीडिंग. रीडिंग यहाँ पर हम सिर्फ रीडिंग भी कह सकते हैं.
लेकिन हम कह रहे हैं रीडिंग बुक्स, सो दैट मीन्स कि यू आर स्पेसिफिकली डिफाइन दीज बुक्स. तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज. Reading books, reading magazines, reading articles. Okay, after that you can say scrolling down. This is also a noun phrase. That is the short one, but you can make some noun phrases with more words. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, different noun phrases you are going to use. Okay. अच्छा जी. Okay class, now we are going to the next slide, and that is all about the pronouns. Pronouns क्या हैं? Pronouns are the words that are used at the place of noun. You have studied that definition. ठीक है, आपने पढ़ी है. अब इसको समझें अच्छी तरह. When we talk about us, ठीक है, तो us का मतलब है मैं हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग हैं. लेट्स सपोज कि मैं अगर अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ, मैं कह रही हूँ मैं और मेरे स्टूडेंट्स, इनकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं अस या वी. ओके, फिर हम कहते हैं मैं अपने बारे में कुछ बात कर रही हूँ. अगर मैं कह रही हूँ कि माई नेम इज़ शफक एंड आई एम अ मेंटोर एंड आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंटेंट राइटिंग, तो अब मैं अपने नाम की जगह, शफक की जगह बार बार शफक शफक यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि अपने नाम की जगह आई यूज़ कर सकती हूँ. सो दैट इज़ अ प्रोनाउन फॉर मी. आफ्टर दैट अगर मैं कह रही हूँ कि इट इज़ हिज बैग या इट इज़ हिज आइसक्रीम, सो दैट मीन्स के the thing belongs to that person, और वो अगर हम his यूज़ करें, so that means we are clear कि it is about boy, it is about a boy. और अगर हम गर्ल के लिए यूज़ करेंगे तो हम उसे कहेंगे हर. ठीक है, ये चीज़ मज़ीद कैसे एक्सप्लेन होगी? प्रोनाउंस की कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें आपने समझना है. For the speaking, these forms are really important. That's why I have added them here. Okay, that is all about the subjective pronoun, the objective pronoun, and the possessive pronoun. Subjective pronouns are those that we can use instead of a subject. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ Simon eats chocolate. Simon is the subject here. मैं कह रही हूँ Simon eats the chocolate. तो आप साइमन की जगह पे क्या लगाएंगे? प्रोनाउंस में से आप लगाएंगे ही. आप कहेंगे he eats the chocolate. Simon eats the chocolate. He eats the chocolate. Okay. So this is a subjective pronoun, that is he. और subjective pronoun और कौन से होते हैं? I, we, you, they, he, she, it. ये सारे subjective pronoun हैं. Okay. But when we talk about the objective pronoun, objective pronouns are those that we use instead of an object. Just like Alina goes to school with Sarah. Sarah is the object here, so we can use at the place of Sarah her. Okay, तो हम कहेंगे Alina goes to school with her. Okay, और मजीद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? I का me, we, us, you, they, them, he, him, she, her, and it, its. You will have to memorize them because we are much confused in speaking for these pronouns कि कौन सी जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है. तो इनको आपने मेमोराइज करने पड़ेंगे और ये ईजी है. अगर आप इसे समझ लें तो आपको याद हो जाएंगे. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है पोजीशन. आपकी पोजीशन, ऐसी चीज़ जो आपकी पोजीशन हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई स्मार्टफोन. ये मेरा स्मार्टफोन है. दिस इज़ माई पोजीशन. ओके, तो पोजीशन शोज यू, योर पोजीशन शोज you with these possessive pronouns. So you can just say this is my bag, this is my smartphone, this is my laptop. Okay, so these are the possessive pronouns and you can use my at the place of I. ठीक है, we के साथ, we के लिए हम are यूज करते हैं, our. you के लिए हम your यूज करेंगे, they के लिए their, he के लिए आप यूज करेंगे his, she के लिए her, and it के लिए its. Okay, you can say this is my bag. Okay, this is my car. Okay, so just like that, when you show your possession, you use these type of pronouns. Those are the possessive pronoun. Okay, now when we move forward, difference between its and its कश्यप पूछ रही हैं. तो इट्स जो है,
एक प्रोनाउन है ITS वाला, और अगर आप IT के बाद अपास्ट्रॉफी S लगाते हैं तो दैट मीन्स इट इज, वो फिर कोई प्रोनाउन नहीं है, वो है इट इज। ठीक है, आगे चलते हैं एडजेक्टिव्स। सो क्लास, एडजेक्टिव्स की जब हम बात करेंगे तो एवरीबडी विल से दैट एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन। ऐसे ही होता है ना, हम स्कूल में यही पढ़ते हैं, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन, लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। आप कहते हैं एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन जो चीज बताएगी, जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव है। अब वो डिस्क्रिप्शन उसकी क्वालिटी में हो सकती है, क्वांटिटी में हो सकती है, कलर में हो सकती है, टेस्ट में हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं दिस बल्ब इज ब्राइट, ये बल्ब हो सकता है कि ये जल नहीं रहा होता तो फिर ये ब्राइट नहीं होता, तो दिस ब्राइट वर्ड इज टेलिंग इट्स डिस्क्रिप्शन, और ये उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि इट इज अ ब्राइट बल्ब। उसके बाद दिस स्ट्रॉबेरी इज स्वीट, ठीक है, दिस इज इट्स डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ हैप्पी फेस, ये फेस सैड भी हो सकता था, ठीक है, बट दिस इज अ हैप्पी फेस, तो हैप्पी इज एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग द वर्ड you know about this face. After that, when we talk about this butterfly, that is pretty, so you can say it is a pretty butterfly. हो सकता है आपको pretty लग रही हो, किसी और को ना लगे, तो only the description या colors या कुछ भी आप किसी भी चीज का बता रहे हैं, so that is adjective. This tree is green, okay, so this green color is its adjective. ये किसी और कलर का भी हो सकता था, ठीक है। So class, the example, the practical example of this adjective is that कि अगर हम एक प्रोडक्ट लें, लेट सपोज अगर हम एक पॉपकॉर्न की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो हम पॉपकॉर्न को अपने 5 सेंसेस से किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स में यही होता है, किसी भी चीज़ को आप अपने 5 सेंसेस से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है वो 5 के 5 सेंसेस यूज हों, उसमें कहीं कहीं पे सिर्फ सेंस ऑफ साइट यूज़ होगा, कहीं कहीं पे सिर्फ कोई और सा सेंस यूज़ होगा, ठीक है। अगर हम पॉपकॉर्न की बात करते हैं तो पॉपकॉर्न के लुक्स कैसे होते हैं, आप उसे कैसे देखते हैं, तो सबसे पहला सेंस जो है वो देखने का सेंस है, तो आपको वो कैसा दिखता है पॉपकॉर्न, आपको वो दिखता है वाइट और गोल्ड कलर का, और इरेगुलर सरफेसेस होती हैं पॉपकॉर्न की, ठीक है, तो यू कैन से इरेगुलर सरफेस या वाइट या गोल्ड कलर उसमें, ठीक है। फिर जब हम उसकी स्मेल की बात करें तो इफ़ इट इज़ अ सॉल्टी पॉपकॉर्न, तो उसकी जो है वो सॉल्टी स्मेल आएगी, या उसमें बटर डाला होता है तो बटरी स्मेल होती है, और अगर वो स्वीट पॉपकॉर्न होगा तो स्वीट स्मेल होगी। साउंड, जब हम उसे खाते हैं तो उसकी कैसे साउंड आती है, क्रंची सी साउंड आती है, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद आवर सेंस, ठीक है। अब उसके बाद जब हम उसे फील करते हैं, जब हम उसे हाथ में लेंगे तो वो कैसा फील होगा, वो फील होगा बम्पी, इरेगुलर सा, ठीक है, तो बम्पी सरफेसेस होती हैं उसकी, इरेगुलर होती हैं जब हम फील करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो द एडजेक्टिव ऑफ अ पॉपकॉर्न। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्ट, सो ऑफ कोर्स उसमें जो अगर सॉल्ट डाला जाएगा तो वो सॉल्टी होगा, अगर उसमें कोई फ्लेवर डाला जाएगा तो वो फ्लेवर वाला टेस्ट होगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अपने सेंसेस के साथ एवेलुएट करते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन उसका एडजेक्टिव है। लेट सपोज आपके घरों में फिर हम बात करते हैं, अगर हम एनर्जी सेवर्स की बात करें, तो आपके घरों में एनर्जी सेवर्स हैं, एनर्जी सेवर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, इट सेव्स एनर्जी, एनर्जी सेवर है, उनका नाम ही उनका एडजेक्टिव है, एनर्जी सेवर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वाइट लाइट, बल्ब पहले ज़माने के जो बल्ब होते थे वो येलो होते थे, ये वाइट लाइट देगा आपको, ठीक है। फिर इसमें मज़ीद अगर उसके कोई शेप्स चेंज हैं तो आप उसको शेप के लिहाज से भी उसके एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायरल शेप में है या राउंड शेप में। सो हर चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हैं उन सब की आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं विद देयर एडजेक्टिव्स, सो दैट्स वाई these are the adjectives, these are descriptive words, ठीक है। अब जब हमने adjectives पढ़ लिए तो अब हम देखेंगे antonyms of the adjectives. These are important क्योंकि कभी कभी बहुत सारे words के लिए हमें देखने पड़ते हैं while speaking we will have to know the antonyms or the synonyms too, ठीक है। antonyms क्या होते हैं, opposites होते हैं, और synonyms क्या होते हैं, same words होते हैं।
तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉमन एंटोनिम्स, जिसमें आ जाते हैं लाइट, लाइट का क्या होगा, डार्क, लेट, अर्ली, लाउड, क्वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट। अब इनके सिनोनिम्स निकालें। लाइट का सिनोनिम क्या हो सकता है, यू कैन से ब्राइट, लाइट और ब्राइट सेम चीज है। लेट को आप कह सकते हैं डिले, लाउड को आप क्या कह सकते हैं, नॉइजी, बिग को एनर्मस, बड़ा, या ह्यूज भी कह सकते हैं, टॉल, लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से यू मस्ट नो द कॉमन एंटोनिम्स, द कॉमन एडजेक्टिव्स ऑफ different antonyms and also the synonyms too. Okay, so that you are going to practice wherever you are going to practice your English, वहाँ पर जो भी words आपको adjectives मिलेंगे, आपको उनके antonyms और synonyms भी पता होने चाहिए. If you are recording yourself, if you are noting down the words, then you will have to know. या फिर आप वैसे भी अगर verbally भी इसकी practice करें तो verbally भी आपको antonyms और synonyms पता हो. ओके, यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं. डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड नाउन फ्रेज एक बिल्कुल अलग चीज़ है. हक नवाज, नाउन एक अलग पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव एक अलग चीज़ है. नाउन फ्रेज में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता है. ठीक है, नाउन फ्रेज के अंदर हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एडजेक्टिव उसका एक सिर्फ पार्ट है. ठीक है, एक अलग चीज़ है. डिस्क्रिप्शन में क्वालिटी के अलावा उसका कलर, उसकी क्वांटिटी के लिहाज से कोई भी चीज़, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कोई भी चीज़, ये सब कुछ आ जाती है. SK, आई डोंट नो योर फुल नेम, प्लीज़ राइट योर फुल नेम. तो आपने जो है, अगर आपकी किसी कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, उसकी आप डिस्क्रिप्शन बयान करें, सो दैट इज द एडजेक्टिव, दैट इज नॉट स्पेसिफिकली द क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब एक खुसूसियत की तरफ जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ खुसूसियत नहीं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू. मेरी आवाज़ कट हो रही है सिद्रा के पास. सिद्रा, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके रिदा, ओके, सो रिदा, इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बताई थी, तो उन टिप्स के साथ जब आप यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, देयर यू विल बी फाइंडिंग मैनी वर्ड्स, सो यू विल हैव टू नोट दैम डाउन, या फिर आप अपने डिवाइस में ही उसे रिकॉर्ड करें या फिर उन्हें कहीं सेव करें और उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सर्च करें. दैट विल बी एडिंग अप योर वोकैबुलरी. ओके, yes, I have given the assignment, Maham, and that is to introduce yourself on the WhatsApp group. Okay, so class, we are moving towards the next topic and that is verbs. अच्छा, ये तो बहुत easy चीज़ है. Verbs are actions. जो भी actions perform आप कर रहे हैं, चाहे वो physical हो, चाहे वो emotionally हो, या चाहे वो unphysical हो. Let's suppose कि if you are thinking, okay, so this is not a physical action. All the things are actions. ठीक है, you can say just like that, run, look, listen, laugh, drink, everything you do. Okay, so that these are the verbs. Okay, so I don't think there is much explanation required for this topic. That's why I'm not adding it any more things here. After that, when we are going towards adverb, तो अब आपको explanation समझ में आनी चाहिए इसकी. Adverbs क्या हैं? We use much of the adverbs when we speak English. Okay, so that's why you will have to understand them. Adverbs add to verbs to tell us how, when, and where and why the verb perform. कोई भी काम कैसे, कब, कहाँ और क्यों हुआ, एडवर्ब ये बताते हैं. 4 चीजें बताते हैं: हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. ठीक है, अब देखें, अगर आप कहते हैं टोनी कंप्लेन, टोनी ने कंप्लेन की, टोनी ने कैसे कंप्लेन की, हाउ डिड ही कंप्लेन, सो ही कंप्लेन बिटरली, बुरे तरीके से उसने कंप्लेन. अब ये कंप्लेन को डिफाइन कर रहा है कि कैसे उसने कंप्लेन की. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन, तो अगर आप कहते हैं जैक बॉट अ कैक्टस, जैक ने कैक्टस खरीदा, कब खरीदा भाई उसने, तो जैक बॉट अ कैक्टस yesterday, कल खरीदा. दिस yesterday is an adverb that is adding more explanation to your verb.
दैट इज बाय, बॉट है, ठीक है, ये इसका वर्ब है और इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहा है। यस्टरडे आपको ये बता रहा है कि कल उसने ये चीज़ खरीदी। When you talk about where, so that is Barry will wait where, here। अच्छा, इस हेयर की जगह हम बस स्टॉप भी कर सकते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट भी कर सकते हैं कि बैरी विल वेट एट द बस स्टॉप, ठीक है। सो यू आर टेलिंग कि वो कहाँ वेट करेगा। इस वेट का डायरेक्ट लिंक है कि कहाँ वेट करेगा, तो बस स्टॉप पे वेट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम वाई की बात करते हैं तो एन इज ट्रेनिंग, एन ट्रेन कर रही है। क्यों ट्रेन कर रही है भाई, वो किस चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग कर रही है। शी इज ट्रेनिंग टू विन, ठीक है, मे बी पॉसिबल शी इज ट्रेनिंग फॉर रेसिंग टू विन, शी इज ट्रेनिंग फॉर बॉक्सिंग टू विन, ओके, बट शी इज ट्रेनिंग टू विन। तो ये उसका पर्पज है ट्रेनिंग करने का। तो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर वर्ब with adverb in the form of all these 4 scenarios, how, when, where, why, so these are all the adverbs that you are going to tell. For example, अगर आप कहते हैं कि my cousin drives a car, मेरा कज़न कार ड्राइव करता है। कैसे करता है वो कार ड्राइव। My cousin drives a car carelessly करता है, बहुत लापरवाही से चलाता है। So that is explaining his driving, carelessly उसकी ड्राइविंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अब एडवर्ब में ना कुछ और चीज़ें हैं, कुछ रेगुलर एडवर्ब हैं जिसमें एलवाई आता है आखिर में, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा केयरफुल, सो केयरफुली हो गया, और इसको केयरलेसली भी आप कर सकते हैं। केयरफुली का मतलब केयर के साथ, केयरलेसली का मतलब बगैर केयर से, यानी कि लापरवाही से। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल की, तो यू कैन से ब्यूटीफुली, you have made this dress beautifully, ठीक है। तो आपने बताया कि उसने कैसा ड्रेस बनाया है, तो उसने बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाया। फिर आप कहते हैं she has done the sum easily, उसने ये जो sum है वो बहुत easily कर दिया। she has done the sum, कैसे किया उसने, easily। my brother drives the car safely, तो उसने कैसे कार ड्राइव की, सेफली। तो दीज आर द एडवर्ब्स, दीज आर कॉल्ड द रेगुलर एडवर्ब्स जिसमें एलवाई लगता है। अब हम बात करते हैं अगर इरेगुलर एडवर्ब्स की, तो इनमें एलवाई नहीं लगता, ये अलग ही वर्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड का एडवर्ब होता है वेल, यू कैन से इंस्टेड ऑफ गुड आप कहेंगे वेल, आप कहेंगे आई एम गुड, आई एम वेल, ठीक है। दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो यू आर सेइंग दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फास्ट की, तो फास्ट में कभी भी एलवाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप कहते हैं ही रन्स फास्ट, नॉट फास्टली, ठीक है। फिर उसके बाद लेट की जहाँ तक बात आती है, तो लेट ली भी नहीं होता, आप इसे कहते हैं लेट, ठीक है। शी विल कम लेट, okay, so these are regular and irregular adverb and you will have to practice them all, okay। क्लास बहुत सारे मैसेजेस आ गए, मैं ज़रा मैसेजेस देख लूँ, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। Okay class, so you are asking about the assignment. I will be telling you after some time. I will be opening up the privacy of the group. Okay, due to some reason I couldn't open the privacy, but after some hours I will be opening up, because अभी जो क्लास के बाद है मैं आपका रिकॉर्डिंग लिंक शेयर करूँगी, तो उस टाइम पे ग्रुप ओपन नहीं होगा, उसके 2-3 घंटे के बाद मैं आपका ग्रुप ओपन कर दूँगी, सो दैट यू कैन शेयर योर फर्स्ट असाइनमेंट एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी द क्यूरीज। अच्छा, आज से अब जो असाइनमेंट मिलेंगे वो सारे असाइनमेंट यू आर गोइंग टू सबमिट ऑन द FB ग्रुप। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट असाइनमेंट आपने सबमिट करना था व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और FB ग्रुप पे जैसे आपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं उसका जो तरीका आपको DSC टीम ने बताया हुआ है, ग्रुप में सारे मैसेजेस देख लीजिएगा, तो आपने उसी तरह से सबमिट करने हैं, टैगिंग करके और जिस तरह से भी बताया मैं, ठीक है। ओके अच्छा, कश्यप पूछ रही हैं व्हाट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव और ब्यूटीफुली उसका एडवर्ब है।
एडजेक्टिव ना डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन को डिफाइन करते हैं, उनके बाद एक ना एक नाउन आता है, लेकिन एडवर्ब के बाद कोई नाउन नहीं आता, वो वर्ब को अच्छा देखें, एडजेक्टिव का जो लिंक है वो बनता है नाउन से, एडजेक्टिव लिंक नाउन, एडवर्ब लिंक वर्ब, एडवर्ब नाउन से लिंक नहीं करता, एडजेक्टिव नाउन से लिंक करता है, एडवर्ब लिंक करता है वर्ब से। आप डायरेक्टली वर्ब को बताते हैं कि वर्ब असल में कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ क्लास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है preposition. Preposition are really important to understand while you are learning this spoken English. So that's why देखते हैं preposition की जो ये जो वर्ड है that means प्रे का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब प्लेस, पोजिशन से पहले, ठीक है, इससे आप इसको याद रखें। तो किसी भी पोजीशन से पहले नाउन की पोजीशन को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं दीज आर प्रपोजिशन। और प्रपोजिशंस के लिए एक और चीज़ समझनी है कि प्रपोजिशन मस्ट नॉट बी ट्रांसलेटेड वर्ड टू वर्ड। किसी भी लैंग्वेज में प्रपोजिशन इंग्लिश टू उर्दू अगर आप करें तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होंगे। कहीं पे इनका मतलब मैं आ रहा होगा, कहीं पे इनका मतलब पर आ रहा होगा, कहीं पे से आ रहा होगा, मतलब देयर आर डिफरेंसेस। तो आपने उसके सेंस को समझना है कि असल में बात क्या हो रही है और इसके यूजेस समझना है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर देखें प्रपोजिशन इज ऑन। अब ये जो ऑन का प्रपोजिशन है इसका मतलब है द एप्पल इज ऑन द बॉक्स, ये एप्पल बॉक्स के ऊपर है। ऑन क्या करता है, दो थिंग्स के बीच में, टू थिंग्स के बीच में कॉन्टैक्ट शो करता है। एप्पल बॉक्स के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, उन दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है। दैट्स वाई यू आर सेइंग द एप्पल इज ऑन द बॉक्स। आप कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पंखा चल रहा है टेबल के ऊपर, टेबल नीचे है ऊपर पंखा है, इन दोनों के बीच में फासला है, पंखा कोई टेबल के ऊपर नहीं रखा हुआ, कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे कि फैन इज रनिंग ऑन द टेबल तो ये गलत होगा। आप कहेंगे द फैन इज रनिंग ओवर द टेबल। जब दो चीज़ों के बीच में फासला हो और आप उनका कनेक्शन बता रहे हैं, पोजिशन बता रहे हैं, तो देयर यू विल बी यूजिंग ओवर। हम कहते हैं द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ब्रिज किसके ऊपर है, रिवर के ऊपर है। रिवर से कांटेक्ट में तो नहीं होता ना, अगर कोई ब्रिज बना हुआ है रिवर के ऊपर तो वो कांटेक्ट में तो नहीं होगा, वो उससे ऊपर बना होगा, बीच में डिस्टेंस है। सो दैट्स वाई वेयर देयर इज अ डिस्टेंस वी विल बी यूजिंग ओवर देयर। और अगर कांटेक्ट में कोई चीज़ है तो हम ऑन यूज करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इन का मतलब है कोई चीज़ है जिसकी चार दीवारी है और उसके अंदर कुछ है। लेट्स सपोज दिस बॉक्स, इस बॉक्स की चार दीवारी है ना और इसके अंदर ये एप्पल है, तो आप कहेंगे द बॉक्स इज इन द एप्पल। हम कहते हैं ना मिस मे आई कम इनटू द क्लास, तो क्लास की एक चार दीवारी है जिसके अंदर जाने के लिए हम टीचर की परमिशन लेते हैं। तो किसी भी चीज़ की, अब ये चार दीवारी बॉक्स की हो सकती है, कंटेनर की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो अगर किसी भी चीज़ को आप उसके अंदर शो करना चाह रहे हैं तो यू आर गोइंग टू से इन द बॉक्स, द एप्पल इज इन द बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद द एप्पल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स या फिर बिसाइड द बॉक्स, ठीक है, बराबर में रखा है। द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इससे आगे रखा है। द एप्पल इज बिहाइंड द बॉक्स, उसके पीछे रखा है। ये सब तो समझ में आ रहा है सबको। द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस, दो बॉक्सेस हैं उनके बीच में एप्पल है, तो आप कहेंगे बिटवीन द बॉक्सेस। दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ है तो आप बिटवीन यूज करेंगे, और अगर बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में कोई चीज़ है तो आप अमंग यूज करेंगे। आप कहेंगे द एप्पल इज अमंग द बॉक्सेस, इसका मतलब है दो से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। अमंग आता है दो से ज़्यादा के लिए, बिटवीन आएगा दो चीज़ों के लिए, अब वो चाहे दो चीज़ें कोई भी, ठीक है। The apple is between the boxes, the apple is among the boxes. Okay, now when we talk about under, तो under का मतलब है किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, of course आपको पता है। अब देखें the apple is under the box, हम कहते हैं ना the cat is sitting under the chair। cat कहाँ है, चेयर के नीचे बैठी हुई है, ठीक है। तो क्या है, under आप यूज करेंगे when something is under that the other thing। फिर उसके बाद थ्रू हम यूज करते हैं
अगर हम कहेंगे द एप्पल इज थ्रू द बॉक्स, तो इसका मतलब है द एप्पल, एक मिनट, द एप्पल यहाँ से घूम के यहाँ से वापस आया है, तो आप कह रहे हैं द एप्पल इज थ्रू द बॉक्स, गोइंग थ्रू द बॉक्स। जैसे हम कहते हैं ना द बॉल इज गोइंग थ्रू द वॉल, बॉल कहाँ जा रही है, वॉल के उस तरफ जा रही है, बॉल को फलांग के दूसरी तरफ चली गई, तो हम कह रहे हैं द एप्पल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स, तो बॉक्स को ये घूम के इस तरह से आया है, so that's why we are using through here. After that, when we say the apple is going around, the apples are going around the box, so that means कि around का मतलब है ये इसके आसपास घूम रहा है। जैसे हम कहते हैं the earth goes around the sun, the moon goes around the earth, तो क्या है, किसी चीज़ के आसपास घूमने को around, ठीक है। तो दीज आर द प्रपोजिशन, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन जो हैं वो 3 हैं, जैसे इन, ऑन, एट, और इनके यूजेस बहुत सारे हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और वो क्या यूजेस हैं, इन हम यूज़ करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे हम कहते हैं इन 1947, इन 2020, हम कहते हैं इन जनवरी, और आप कह सकते हैं डिफरेंट सेंचुरीज के नाम आप लेते हैं, या फिर आप किसी भी मंथ का नाम ले सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है जिसके बारे में आप बात करें तो आप यूज़ करें इन, ठीक है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान केम इन टू बीन इन 1947, तो 1947 का पूरा एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, पूरा एक ईयर है जिसके बारे में आप बात करें, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग इन देयर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन, तो ऑन का मतलब है आप एक शॉर्टर पीरियड के बारे में बात करें। आप कह रहे हैं ऑन मंडे आई विल कम टू मीट यू ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगी तुमसे मिलने। अब मैंने मंडे को टाइम नहीं बताया, मंडे का दिन कितना बड़ा है, 24 घंटे। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं मंडे को शाम को 5 बजे आऊँगी या सुबह 7 बजे आऊँगी, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आई विल कम टू मीट यू ऑन मंडे। दिस इज़ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और एक सेंचुरी या एक महीना जो है वो बड़ा पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट एट, एट का मतलब है एग्जैक्ट वही टाइम, इन आ गया लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑन आ गया शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एट आ गया एग्जैक्ट वही टाइम। आप कहेंगे एट 10:30 आई विल कम टू योर हाउस एट 10:30, तो मैं कब आऊँगी तुम्हारे घर, 10:30 बजे। तो 10:30 से 10:35, 11:45 हो सकते हैं, या हो सकता है मैं उससे पहले आ जाऊँ तो 10:15 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 12 बज जाए या 1 बज जाए, ठीक है। तो एट का मतलब है आप कोई ऐसा टाइम बता रहे हैं जो उसके आसपास ही है। यू कैन ऑल्सो से एट दैट टाइम, एट ईद डे, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट आप एट यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली किसी टाइम के लिए। और जब हम प्लेसेस की बात करते हैं तो इन एक ऐसी चीज़ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जब किसी चीज़ की 4 दीवारी हो और उसके अंदर कोई चीज़ है, तो कंटेनिंग कोई चीज़ है तो आप उसके लिए इन यूज़ करेंगे। ऑन हम यूज़ करते हैं अगर सरफेसेस 2 चीज़ों की टच हो रही हैं, लेट्स सपोज द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक और टेबल की सरफेस आपस में टच हो रही है तो एन यूज़ करेंगे। और स्पेसिफिक कोई प्लेस अगर आप बात करें, लेट्स सपोज मैं कहूँगी आई एम एट माई होम, तो अब मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, मैं अपने घर पे जो मौजूद हूँ तो मैं अपने घर के प्रेमिसेस में कहीं पर भी हो सकती हूँ। हो सकता है मैं अपने घर की छत पे हूँ, हो सकता है मैं किचन में हूँ, हो सकता है मैं टीवी देख रही हूँ तो मैं ड्राइंग रूम में हूँ या टीवी लाउंज में हूँ, ठीक है। तो क्या है, स्पेसिफिकली आप किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो देयर यूज एट। यहाँ पर हमने बात की इन ऑन एट की टाइम के लिहाज से, यहाँ पर हमने बात की प्लेसेस के लिहाज से। अब आप इस चीज़ को मज़ीद समझें। एट का मतलब है एट 5 o'clock, 5 बजे, लेट्स सपोज, ठीक है। ऑन मंडे 5 बजे मंडे को, इन जनवरी। अब जनवरी एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, मंडे एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें सिर्फ 24 घंटे होंगे, और 5 बजे दिन में 2 दफ़ा सिर्फ 5 बजेंगे, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। एट 5 o'clock ऑन मंडे इन जनवरी। इस तरह से आप टाइम के लिहाज से यूज़ करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस के लिहाज से, तो लेट्स सपोज मैं आपको कह रही हूँ आई लिव एट 542 GT रोड। अब मैंने आपको अपने घर का एड्रेस बता दिया स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये एक ही घर का होगा उस रोड पे, 542 GT रोड, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आई लिव ऑन GT रोड, तो अब मैंने आपको अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया, मैंने आपको बताया मैं GT रोड पे रहती हूँ,
GT रोड बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारे घर होंगे, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिकली अपने घर का एड्रेस नहीं बताया। और अगर मैं कह रही हूँ आई लिव इन लाहौर, सो दैट मीन्स लाहौर तो अब बहुत ही बड़ा है, उसमें बहुत सारे रोड्स होंगे, बहुत सारे हाउसेज होंगे, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से हम एट, ऑन और इन को एक्सप्लेन करते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ भी ऐसे, एट स्मॉल लिखा है, उसके बाद ऑन है और उसके बाद इन को बड़ा लिखा है। So you will have to understand that where we use these prepositions according to the time and according to the place. Okay, hopefully you understand these prepositions. Now when we talk about conjunctions, तो conjunctions क्या हैं? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने वाले वर्ड्स कहलाते हैं कंजंक्शंस। लेट्स सपोज आप एंड के साथ मिला सकते हैं, आप कह सकते हैं सारा एंड सिद्रा आर गोइंग टू द मार्केट। तो सारा और सिद्रा को किससे मिलाया आपने? एंड से। तो ये आप कनेक्शन बता रहे हैं, कंजंक्शंस यूज करें। उसके बाद आप ये कह सकते हैं आई लाइक बिरयानी बट माई सिस्टर लाइक्स कोरमा। ठीक है, मुझे बिरयानी पसंद है लेकिन मेरी बहन को कोरमा पसंद है, वो कोरमा खाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से एंड बट हो गए। फिर आप देन यूज़ करते हैं बहुत सारे वर्ड्स में, बहुत सारे सेंटेंसेस में। रादर, और, नाइदर, नॉर, बोथ, ये सारे कंजंक्शंस हैं या कनेक्शन वर्ड्स आप इन्हें कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट सिनेरियोज में हम अपनी स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैम एंड देयर इज़ नो मच एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कंजंक्शंस। Okay, now class, I'm going to take your questions first. No, we cannot say this, Adil. Bridge is upon the river. Bridge is over the river. या above the river. Above भी use कर सकते हैं। ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर असाइनमेंट टुडे, और इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। सो द असाइनमेंट इज देयर, यू आर गोइंग टू यूज, अच्छा, यू आर गोइंग टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, वीकनेसेस बतानी है, ये सारी, ये दोनों चीज़ें आप अपने एडजेक्टिव्स में बता सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी स्ट्रेंथ है कि यू आर मच पंक्चुअल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यू आर मच पंक्चुअल, दिस इज योर स्ट्रेंथ। और आपकी वीकनेस हो सकती है, लेट्स सपोज यू आर lacking of confidence, so this can be your weakness. And after that you are going to tell us your future plans. और ये जो पैराग्राफ है ये 3 से 4 लाइनों का होगा बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अच्छा, ये क्लास आपने पहले तो लिखना है और फिर उसके बाद आपने इसे रिकॉर्ड करना है अपनी वॉइस में। ठीक है, वॉइस फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट सेंड किए थे, बट यू आर गोइंग टू सेंड देम नाउ ऑन द FB ग्रुप ऑफ DSC। ठीक है, बिकॉज दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द DSC मैनेजमेंट टीम, so that's why you will have to submit your all the assignments there on the FB group. ठीक है, hopefully you understand this. ओके, नाउ क्लास आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक्स। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बट please try to use English because this is your spoken English class. That's why I do not allow you to speak in Urdu. Okay, and after that when you are going to send me the messages on the WhatsApp group, there you will also be using English language. Okay, yeah, so you can ask me the questions. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा नाम शाहजवाद है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना है कि मैम जो हमने नाउन फ्रेजेस पढ़े हैं, प्लीज इन इंग्लिश। my question is that noun phrases, I want to ask you about the meaning of noun phrases. Noun phrases are the explanations of noun. Let's suppose you are having your smartphone and you are explaining your smartphone. This is an expensive smartphone. This is a blue color smartphone. Okay, a blue color expensive
Nokia smartphone, let's suppose you are saying this. So ये जो blue color expensive, ये सारे adjectives हैं जो आप मिलाकर यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल को explain करने के लिए. That will give you more words to speak. That's why we will have to use noun phrases in our speaking. Okay. Okay, thank you. Hello, Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Ma'am, my name is Shahuddin. I want to explain me between in and through. What is the main difference between in and through? Between through and In. in and through. In is something that that you are going to explain, that is something contained. Just like that I have told you कि अगर किसी चीज़ की चार दीवारी है, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, घर हो सकता है, कमरा हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, लेकिन थ्रू हम उस चीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि वो चीज़ यहाँ से ट्रैवल करके उधर तक गई है. इन का मतलब है वो चीज अंदर ही मौजूद है, थ्रू का मतलब है वो चीज घूम के गई है, इट इज गोइंग थ्रू दैट थिंग. ओके, सो इट Okay, इज ma'am. एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट. या Hello, ma'am. I'm Yeah. asking about assignment. या Our first assignment is our introduction, and the second assignment is today या prepositions. This one. this one. Okay. Yeah, you are going to explain your strength, weaknesses and future plans in just 3 lines, and you need to record yourself and send it in the And- voice note. And send it in voice Voice in note. FB. In FB. या FB group. ठीक है, you In can FB, just see right. the assignments of the previous student, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है. वीडियो फॉर्म में करना है. वीडियो either you want to make it on the blank screen, तो वीडियो आप उस तरह से रखें, लेकिन वॉइस आपकी होनी चाहिए. I just want to listen to your voices because this is your spoken English course, that's why you need to speak up. Okay. Yeah. It's in a video form, not in a recording form. No, because you cannot It should be- upload it the should voice be. recording there on the FB group. वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता, वीडियो का ऑप्शन आता है, तो वीडियो अपलोड करें All बट right, all right. स्क्रीन ब्लैंक रखें. ओके. Okay. All right. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम सलाम. Ma'am, I just want to ask that if you are unable to upload the assignment on FB, then what? Dear, these are the requirements from the team, so you will have to do it. Okay, so I Because will I be didn't checking. accept the request. Because I had sent the request on the Facebook group, still not approved by the administrator. You need to check the messages from the DSC team there on the WhatsApp group. They have been telling everybody that it needs around 48 hours to approve the assignment or approve the request. तो 48 hours तक एटलीस्ट उसे वेट करें, क्योंकि वो एक टीम, एक मैनेजमेंट है, आराम से प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को मैनेज करके काम होता है. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू वेट. ओके. Okay. In any case, we are unable to post the assignment on Facebook. We can share it on WhatsApp or not? No, because these are not the requirements from that Okay. the Okay. team. That's why you will have to do it. Okay, and I will be checking all the assignment on the FB group. Okay. Thank Okay, you. class. Anybody else who have a question? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी. मिस क्वेश्चन था, प्लीज एक्सप्लेन थ्रो एंड अंडर. I have told you through means कि आप movement बता रहे हैं. Let's suppose the ball is going through. preposition, miss Yeah, preposition. you are asking about through and under ना. जी मिस जी. जी जी, तो Yes. मैं वही बता रही हूँ. थ्रू मीन्स कि यू आर टेलिंग अबाउट द मूवमेंट कि कोई चीज़ यहाँ से घूमती हुई वहाँ तक गई है, और अंडर का मतलब है कोई चीज़ ऑलरेडी अंडर है, वो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही. यू आर नॉट टेलिंग अबाउट दैट मूवमेंट, यू आर टेलिंग अबाउट दैट स्टैटिक थिंग दैट इज अंडर समथिंग. ओके ओके, थैंक्स मैम. Okay. Class, when you unmute yourself, then please talk to me. Otherwise, अपनी फैमिली की जो बातें हैं वो आप लोग म्यूट करके किया करें.
Okay, yes class, any other students who want to ask me the question, because now I'm going to end up the class. Assalamu alaikum, Miss. Walaikum salam. Miss, here Aisha Tosif. I want to discuss three topics. As we have discussed the pronoun and three forms of pronoun: subject pronoun, objective pronoun, and possession pronoun. So, can you please differentiate the subject pronoun with objective pronoun in a most easy way? Subjective pronouns are used instead of the subject. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सारा इज गोइंग टू स्कूल, तो आप इसकी जगह कह सकते हैं, सारा की जगह, सारा सब्जेक्ट है ना, सारा की जगह आप कहेंगे शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब आपने स्कूल की जगह पे कुछ और लगाना है, या फिर नहीं, इस सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल विद सारा। अब सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई, वहाँ पे सब्जेक्ट थी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई। अब आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल विद हर। सारा के लिए आपने सब्जेक्ट में शी यूज किया है, लेकिन आप यहाँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हर यूज कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस, ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये बहुत माइनर सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है समटाइम्स। दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दैट, ओके। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Yes, ma'am. That I want to ask question that when you are traveling on a bus, but bus is closed. But we say that we are traveling on bus. Why? We cannot say that we are traveling in bus or in aeroplane. Okay, so the thing is that we can use on for the for the vehicles in that we can stand up, ठीक है, तो हम वहाँ पर ऑन यूज करते हैं, तो हम कहते हैं आई एम ऑन द बस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं आई एम इन द कार, सो दैट मीन्स कि आप उसमें खड़े नहीं हो सकते उस कार में, ओके। सो दीज आर And द then, sir, on या but when we are traveling on aeroplane, we say on aeroplane or in aeroplane. Yes, please explain this. you can say on airplane, okay। On aeroplane. Yes, thank you, ma'am. अच्छा, इसको इन भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर सेंसेस हमारे काउंटेबल हैं, तो हम इसको इन भी कह सकते हैं जब हम ये बात करें कि हम एयरप्लेन के अंदर मौजूद हैं, यानी यहाँ पे एक सेंस आपका गेट होना है। अदर देन दैट, अगर आप किसी और को बता रहे हैं कि ही इज़ ट्रैवलिंग ऑन द एयरप्लेन, सो दैट मीन्स कि फिर आप ऑन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपनी बात कर रहे हैं कि आई एम इन द एयरप्लेन, तो फिर आप इन यूज़ करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यहाँ पे सेंसेस की बात है कि कौन सा सिनेरियो और कहाँ पे आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके। Yes, ma'am. Thank you. I have understood. अच्छा क्लास, मुझे एक रिप्लाई देना है। अदील नाजिर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, बोट इज मूविंग, अच्छा मूविंग और गोइंग दोनों लगाया आपने। बोट इज मूविंग अंडर द ब्रिज या बोट इज मूविंग थ्रू द ब्रिज, दोनों ही सही है। अगेन सेंस की बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बोट इज मूविंग अंडर द ब्रिज, सो दैट मीन्स कि वो अभी ब्रिज के अंडर ही है, नीचे ही है ब्रिज के, और ब्रिज के नीचे ही चलती चली जा रही है। लेकिन अगर आप वो ब्रिज के पास से घूमती हुई बाहर निकलती हुई आ रही है, ब्रिज को क्रॉस करती हुई आ रही है, तो आप कहेंगे थ्रू द ब्रिज, ठीक है। दोनों राइट है, लेकिन सेंसेस डिफरेंट है, ठीक है क्लास। नाउ क्लास, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे बी आस्किंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। Right now it's time to say goodbye to everybody. Hopefully you enjoy this class, okay, see you again. Allah Hafiz.